Hello students, today's topic is compound interest, that is our 14th lesson, and straight away we will discuss some of the points which we studied in the last year. सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पहले देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स और द टाइम पीरियड ये होता था और हम उसको डिवाइड बाय 100 करते थे। ये था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बट फॉर फाइंडिंग दिस अमाउंट we need a formula, and the formula is amount is equals to pre bracket में 1 plus r upon 100 raised to n or raised to t. This is nothing but the number of years. Okay, this is rate of interest and this is principal. Okay, using this formula we are going to find out how a compound interest is formed. Okay, so let's start the first question, that is find the compound interest if 4,000 rupees are invested, which means the initial principal was rupees 4,000. Then we have invested for 3 years, that is number of years or n we can consider 3 years, and rate of interest is 12.5%. You can also take 12.5 or you can also take 25 by 2, whichever is suitable to you. I guess I will go with this 25 by 2, which is very easy. So I will erase these two ones and write it over here as 25 upon 2. Okay, one more thing, as we have done many videos on standard 8 mathematics, if any one of you have any kind of doubts, you can definitely comment on our video and let us know that what you have in your mind and what your doubts are. We will definitely get back to those doubts and will surely make those doubts clear. Okay, so please keep in mind that if you have any doubts, you will definitely comment on our videos and let us know that what are your doubts. Okay, moving on further, first we will find the amount, that is this yellow one formula, p bracket 1 plus r upon 100 raised to n. So we have p as 4,000. We are now just substituting all the values. 1 plus, what is r? R was 25 upon 2. I will take 25 upon 2. 100 will be with 2 only, and for n we have 3. Okay, you can first, or you can directly solve it like this. 1, if it is divisible, 25 and 100, definitely it is divisible right now, so we can divide that. That is 25 ones are 25 and 25 fours are, that is 100. Okay, I will erase this one and we will start writing this question over here. Okay, so what will be the answer for amount? 4,000. ओके, दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज कैलकुलेशंस इसके अंदर बहुत सारा होता है. क्या किया मैंने? 8, क्योंकि 2 4 8 होता है, बाहर 3 है, तो फर्स्ट यू विल टेक डाउन द एलसीएम. ओके, एलसीएम विल बी 8, विच मीन्स कॉमन डिनोमिनेटर्स करने हैं हमें. तो 8 प्लस 1 अपॉन 8 और बाहर जो आएगा वो होगा क्यूब. अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है. देखिए बहुत सारा कैलकुलेशंस और बहुत सारा डिविजन्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है. ये देखो 9/8 आने वाला है, तो 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8. ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. ये हो जाएगा 500. मैंने 8 के टेबल से डायरेक्टली 40 कर दिया था यहाँ पे, तो 5 और जो 2 बचे हुए 0 थे वो. अब उसके बाद में हम लोग इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. देखो मैं सिंपल डिविजन्स आपको बताता हूँ इसके. देखा जाए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बहुत बच्चों को, बट हम लोग मोस्टली छोटी छोटी चीज़ें करके भी इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. क्या करते हैं, ये 5 जो है 500 को 5 इंटू 100 करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो. मैंने सोचा 100 करके देखेंगे तो क्या होगा. 8 इंटू 8 2 नीचे है और 9 इंटू 9 इंटू 9 ये है यहाँ पे. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं या 4 के टेबल से. अगर 4 से करता हूँ तो 25 और यहाँ पे आएगा 2. अब ये करते हैं इसको 16 और ये होगा 81 इंटू, मतलब ये 2 को मल्टीप्लाई करते 81 इंटू 9. ठीक है,
अब मैं जो ये 81 इंटू 9 है इसको मैं लिख देता हूँ 729। ये मल्टीप्लिकेशन करके आपका आ सकता है, क्यूब अगर याद हो तो इट्स वेरी गुड। और ये होता है 125 और ये है 16, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या करना है, 729 और मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करता हूँ। तो ये होता है 5, ये होता है 45, ये हो गया 10 14। ओके, देन वी हैव 1 ओवर हियर कैरीड, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36, तो ये हो गया 36। अभी और भी बहुत कुछ है, देखो यहाँ पे 18 का 8 1, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 14, ये डबल मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये 9, उसके बाद 2, ये 7, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेशंस में गड़बड़ भी हो जाती है, वीडियोस में आपने देखा भी होगा, बट हम लोग उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। 4 + 8 होता है 12, 10 10 और 11 होगा 21, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। उसके बाद में हम लोग 2 और 2 4, 8 8 3 11, यहाँ पे 11 आ गया, 7 8 9, ये हो गया 911। तो भाई बहुत बड़ा नंबर है, बट लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग उसको अब 16 से डायरेक्टली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि देखिए कि आंसर सच में राइट आता है या नहीं। 16 से डिवाइड करते हैं 91125 को, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, आपके सामने सारी कैलकुलेशंस की है। यही सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में कि अगर हमें कैलकुलेशंस इंप्रूव करनी है तो आप खुद से टेबल्स के थ्रू आप मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीज़ें डिवाइड करें, तो तभी आपका जो मैथ्स है वो थोड़ा स्पीड अप होगा और आपको ईजी लगना शुरू होगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 और 91, तो 16 5 ज़ा 80 होता है और 16 5 ज़ा 16 6 ज़ा 96 होता है। तो भाई 5 ज़ा ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आएगा आंसर 80, ठीक है। कलर अलग ले लेते हैं भाई, माइनस करने के बाद 11 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा होगा 96 और यहाँ पे 112 आता है बट 111 है, तो 6 ज़ा होगा हमारा 96। चलो 96 लिख देते हैं। 111 में से 96 अगर माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा हमारा 15 आई गेस। और उसी के बाद में मैं नेक्स्ट नंबर लेने वाला हूँ 2, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है और डेफिनेटली ये 9 ज़ा हम लोग कर सकते हैं। 9 ज़ा होता है 144, माइनस करेंगे 8 आंसर आता है 85, यहाँ पे आने वाला है 5 ज़ा वापस आने वाला है 80। अब उसके बाद में देखो 50 आएगा, ठीक है। तो 50 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैं डेसिमल लगाने वाला हूँ यहाँ पे, ये 5 ठीक से लिख देते हैं, डेसिमल लग चुका है। 16 3 ज़ा 48, ठीक है। ये हो गया 2 रिमाइंडर। तो लेट इट बी, आगे के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर हम लोग ये नहीं लिखने वाले। अमाउंट विल बी 5695.3, ये आ गई हमारी अमाउंट डिवाइड करके। अमाउंट आ चुका है तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का वापस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट था हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी थी 5695.3 और उसमें हम लोगों ने 4000 माइनस करना है, तो हमारा जो बचा हुआ आंसर आएगा 1695.3। तो 1 डेसिमल प्लेसेस हो या 2 डेसिमल प्लेसेस चल जाता है। तो दिस वाज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, लेट मी चेक कि ये आंसर सच में राइट आया है या नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो देखने के लिए मिलेगा ये जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1695.31 और 169.13, ठीक है। तो ये देखो ये आंसर पूरा हमारा करेक्ट आया है। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट वी हैव वी विल सी। ओके, देखो प्रैक्टिस सेट 14.1 है, सॉरी हाँ 14.1। 14.1 में अब जैसा कि आपने देखा कि भाई मैंने 2 क्वेश्चंस जो है शुरुआत के आपके लिए ही रखे हुए, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हमने इसी के जैसे क्वेश्चंस ऊपर अभी जस्ट किया है, तो आप यही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही है, एक बार वैल्यूज़ डाल दी तो उसके बाद में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, मैं क्या करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलो, तो सबसे पहले चलो आपके लिए थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दिया गया, बैकग्राउंड का जो बोर्ड है उसका कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ पर आपके पास में शुरुआत में प्रिंसिपल दिया है 4000, भाई जो लास्ट टाइम लिया था वही
ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम लिया था वो नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 दिया गया है। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि इसका डेसिमल हटा के कुछ ये करता हूँ ताकि ये 5 के टेबल से डिवाइड हो और ये 15 बने और ये सिर्फ 2 बने। तो देखो ऐसा कुछ जो है वो शायद हम लोग इजीली सॉल्व कर सके। और नंबर ऑफ ईयर्स तो 2 ईयर्स दिया है। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला था, क्या बोला था, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लेट्स फाइंड द अमाउंट फर्स्ट। अमाउंट इज पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100। और ये अपॉन सिर्फ आर के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और मेरे साथ हमेशा ये गलती होती है, मेरा ये जो ब्रैकेट है ये बहुत छोटा सा रहता है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने बचपन में बहुत मार भी खाई है। जब जब मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए और टीचर ने देखा तो टीचर बहुत चिल्लाती भी थी कि ऐसा ब्रैकेट क्यों डालते हो। अगर आप ऊपर देखो तो शायद मेरा ब्रैकेट अभी भी वैसा ही है। चलो देखते हैं एक बार। ये देखो अभी भी वही, यहाँ का ब्रैकेट हमेशा मेरा शॉर्ट रह जाता था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट शॉर्ट रह जाता है हमेशा। आदत हो गई, मतलब कि यहाँ पे 1 अगर छोटा सा है नंबर और यहाँ पे डिनोमिनेटर तो वहाँ का ब्रैकेट बड़ा होता है। बट क्या कर सकते हैं, अभी वो आदत ही हो गई है और इसलिए मैंने वो थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं भाई। 4000 है, उसके बाद में मल्टीप्लाई है और मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, याद रख रहा हूँ। देखो दोस्तों आपकी वजह से सुधार आ रहा है मेरे सॉल्विंग में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15/2, ओके। और मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पर 2 भी लिख रहे हैं और डिवाइड करने वाले अब इसके बाद में। और डिवाइड करके आंसर लिखेंगे भाई, ये 3 ज़ा 5 के टेबल से और ये 20 ज़ा, तो नीचे 2 और 20 मल्टीप्लाई होकर देखो 40 हो चुका है। बट मैं स्टेप वाइज ही करूँगा आपके लिए ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है वो स्किप ना हो, ठीक है। 1 ज़ा और यहाँ पे स्क्वायर है। अब याद रखो कि आपको 40 एलसीएम चाहिए था, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए था। इसका मतलब 40 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 40 + 3 टोटल हो जाएगा 43 और नीचे कॉमन आ जाएगा भाई 40। अब है भाई स्क्वायर, इसका मतलब 4000 से अब वो होने वाला है मल्टीप्लाई। तो भाई देखो 4000 इक्वल टू डाल देते हैं भाई 4000 और उसके बाद में 43/40 का स्क्वायर, मतलब कि 2 बार लिखना है भाई इसको। ओ सॉरी 0 0 0 भाई दोनों तरफ कट हो गए। 4 1 ज़ा 4 और ये आ गया 10। अभी ये और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या आया, 5 × 43 × 43 और अपॉन 2। बहुत सिंपल आंसर आने वाला है। 43 का स्क्वायर पता कर लेते हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1849, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, तो अपना आंसर भी आ जाएगा। 5 ज़ा 45, 24, 2 42 9। तो दोस्तों आंसर है 9245, जिसको हम वापस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर बने 4 ज़ा 8, 6 ज़ा 2, 2.5। तो अमाउंट वॉज 4622.5 was the amount, actual amount. And now next we have to find the compound interest, that was amount minus principal. And we know that what was amount 4622.5। बहुत ही सिंपल आने वाला है। देखो लास्ट आंसर्स बहुत सिंपल होते हैं बट बीच का कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया भाई 622.5। अब इसका आंसर मैं आपके लिए, चलिए अब देख लेते हैं आंसर राइट आया है या नहीं हमारा। मेरे हिसाब से तो राइट आया होगा। चलिए कौन सा देखा था हमने, ये देखिए 4622.5 और 622.5, ठीक है। तो आंसर्स तो राइट आए हैं हमारे। ओके तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भाई इतना ही है, इसके बाद में और कुछ नहीं है। देखिए थर्ड वाला, सेकंड और नहीं है आई थिंक उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है। मैंने शायद वो देखा ही नहीं, हम कोशिश करते हैं उनको भी कैप्चर करने की। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए नहीं लिखा था यहाँ पे आप आ गए, वो सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर लोन लिया गया है समीर राव ने 12,500 रुपीज़ का। तो दोस्तों प्रिंसिपल आपका जो है वो है 12,500 रुपीज़ एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12% पर एनम एंड द नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 3 ईयर्स। ओके स्ट्रेट अवे है सॉल्व करना है आपको।
हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली बोलते ही आपको याद रखना है कि भाई सिर्फ अमाउंट फाइंड करनी है, क्योंकि हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको ये पता करना है। तो फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा है, सॉरी फॉर द ब्रैकेट अगेन, बट पॉसिबल नहीं है भाई, अब तो आदत हो चुकी है उसी की, तो हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। चलो छोड़ दो, तो कोशिश करता हूँ कभी कभी, बट हो जाता है। देखो मैं जो भी है वो स्ट्रेट अवे 4 के टेबल से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ और आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होगा 3 और ये होगा 25। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 25 आएगा, नीचे भी 25 आएगा, 25 + 3 28 होगा। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी स्पीड में करनी पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट देखो अब क्या होने वाला है, 12,500 is already over here, and now we will do 12,500 into 28 upon 25 into 28 upon 25 multiplied by again 28 upon 25। सो मैं स्ट्रेट अवे 25 के टेबल से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 ज़ा नहीं, ये 5 ज़ा होगा, तो 500 आंसर आएगा यहाँ पे सबसे पहले। तो 500 आ गया, ये और ये वापस डिवाइड हो रहा है, देखो ये आता है हमारा 20 और ये अब 5 की टेबल से डिवाइड होगा, ये होगा 4 ज़ा और ये होगा 5 ज़ा। अब दोस्तों ये 5 जो है ये एज इट इज़ रखें, क्योंकि लास्ट में आपको वैसे भी इन सब का कैलकुलेशन करके आंसर लिखना पड़ता है। तो भाई 28 इंटू 28 इंटू 28 और उसके बाद में 4 आना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा है, 28 इंटू 28 करके देखते हैं भाई। स्क्वायर अगर आपको नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आपको इसी मेथड से करना है, 4 6 16 22 56 784 आ चुका है, वापस 28 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 232 730 67 और 56 एंड 6 is 62 and then we have 8 16 1 15। ओके अभी भी 4 बाकी, याद रखो दोस्तों, 15 1 6 7 8 9 11 1 इधर 2, तो दोस्तों है 21952 और उसके साथ में 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये आता है 8 ज़ा, ये आता है हमारा 0 2 36 38 38 में 3 यहाँ पे 7 यहाँ पे 8। सो फाइनल आंसर वॉज 87808 डिवाइडेड बाय, नाउ वी हैव 5, सो लेट्स डिवाइड डायरेक्टली ओवर हियर। तो देखो ये 8 1 ज़ा 3 कैरी हो जाएगा, 37 7 ज़ा 37 28 होगा, 5 ज़ा 25 3 बचेगा तो यहाँ पे आएगा 61.6। दिस वॉज द अमाउंट 17,561 रुपये हिंदी में, एंड 17,561.6 विल बी द अमाउंट विच ही हैज़ टू पे। लेट्स चेक कि भाई हमारा कैलकुलेशन जो है वो कहीं गड़बड़ा ना गया हो, आई होप वो राइट हो। 14.2 ये देखिए 17,561.6 दैट इज 60। तो ये था फाइनल आंसर फॉर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। अब ये इरेज कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे दिखाना है वो यहाँ पे है लिखा हुआ। ओके ओके, सॉल्विंग दिस वन, the last question of this exercise and probably the last question of our today's video. To start a business, शलाका, बहुत ही अजीब से नाम देते हैं ये स्टेट बोर्ड वाले, बट क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो करते हैं। लोन लिया है भाई 8,000 रुपये का, तो ये जो लोन है ये है हमारा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5 है, मैं उसको 21/2 लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप इसी तरीके से लिखें, ये सबसे बेस्ट होता है। आफ्टर 2 years हाउ मच ही विल हैव टू पे, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट तक जाना है हमें, सिर्फ अमाउंट पे ही नहीं रुकना है। तो भाई टाइम या फिर एन जो है वो 2 years है, और इसकी कैलकुलेशन बहुत ही डेंजरस होने वाली, क्योंकि 21 नीचे कुछ डिवाइड नहीं होता और आंसर बहुत बड़े आने के चांसेस होते हैं। डेसिमल में तो वैसे भी आती है आंसर्स, बट लेट इट बी। चलिए अमाउंट करते हैं भाई, अमाउंट P1 + R upon 100 raised to n we have, and then we have 8,000 as it is, then we have 1 + 21 upon 100, then we have
2 years. Okay, after 2 years which was said. सो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं. 121/100 वैसे भी आने वाला है. 121 इंटू 121 और इन दोनों के नीचे भाई 100 दो बार. सीधी सीधी कैलकुलेशन है. 3 जीरो मैं कट कर देता हूँ. ठीक है, 3 जीरोस कट हो चुके, 1 जीरो बचा हुआ है, उसको भाई बाद में निपटाएंगे हम लोग. इन सबको मल्टीप्लिकेशन में करना है और 10 से डिवाइड करना है, मतलब डेसिमल लगाना है. तो भाई सीधा सीधा कैलकुलेशन है. 121 को कर लो आप. मैं छोटे से इसमें कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटी कैलकुलेशन है. कोशिश करते कि आंसर आ जाए. और ये 88 14641 इसको 8 से मल्टीप्लाई करते ये 8 हो जाएगा. और ये 232 737 11. आंसर है 117128. और इसके बीच में ये डेसिमल. ठीक है, क्योंकि 10 हटा के मैंने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया. तो ये देखिए, ये है हमारा अमाउंट. अब सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं. 11712.8 उसमें से 8000 रुपीज़ माइनस कर रहे हैं प्रिंसिपल. तो आंसर आएगा 3712.80 रुपीज़ इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. 1768.2 और हमारा कितना है 37. तो हम लोगों ने कहीं पे कुछ गड़बड़ की है पक्का, मतलब. ठीक है, तो हमें वो चेक करनी पड़ेगी. ओके दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने गड़बड़ कहाँ पे की है. देखिए, यहाँ पे 21/2 था, लेकिन जब मैं लिख रहा था तो यहाँ पे मैंने 2 लिया ही नहीं. इसका मतलब मुझे यहाँ पे 200 होना चाहिए था, जो कि मैंने 100 लिखा. तो ये 221 होना चाहिए था और यहाँ पर 200 होना चाहिए था. इस वजह से हमारा यहाँ का जो कैलकुलेशन जो है वो पूरा गड़बड़ आ गया, जिसको मैं सीधे सीधे डिलीट कर सकता हूँ. ये देखो, डिलीट हो गया. ठीक है, बाकी का जो पार्ट है हम लोग वो इरेज कर लेते हैं. ये जो भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था भाई, वो रॉन्ग हो चुका है. ये हो गया हमारा काम ख़त्म. ठीक है, हाँ भाई, अब वापस आ जाते हैं भाई हमारी कैलकुलेशन पे जो थोड़ी गड़बड़ा गई थी. भाई अभी ये 20 जो है और ये जो है ये 10 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4. ठीक है, 2 के टेबल से डिवाइड किया. अब वापस 2 1 2 और ये हो जाएगा 2. तो भाई ये जो 2 इंटू 221 इंटू 221 है, इसको हम 442 कर देते हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से. और ये 221 अभी भी डिवाइड करना है. भूलना मत कि भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर अभी भी 10 है. ठीक है, मैं वो भूल गया था, इस वजह से मुझे अब 442 इंटू 221 दोस्तों, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ, जैसे कि सीधा मल्टीप्लिकेशन है और आंसर आपका आ जाएगा. तो भाई 442 इस बार और 221, तो ये 2, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 4 और इसमें 488 इसको हम लिखेंगे 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 और 17 और ये 7 अब आ गया आंसर हमारा. ओ सॉरी 9 9768.20. ठीक है, अब देखते हैं भाई, ये डेसिमल लगा दिया था, ये अमाउंट आ चुका है हमारा. अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी. कंपाउंड इंटरेस्ट इज 9768.20 माइनस 8000. अब शायद आंसर सही हो हमारा 1768.20. लेट्स चेक 1768.2. तो ये रहा हमारा जो आंसर आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर ली है. गिन दिए हुए जो 2 बचे खुचे क्वेश्चंस थे तो वो आपको होमवर्क करने हैं, जो छोटे से थे, ये वाले जो टिक मार्क किए हुए. आप लोग ज़रूर ट्राई करें. और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में शायद कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो डेफिनेटली आपको वो खुद ही से सॉल्व करनी है. वो छोटी मोटी चीज़ें, और कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली हम लोग डील कर सकते हैं. आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर देना. ठीक है, आपके शेयर्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स जो है वो हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं. बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर.